Hey students, welcome to this YouTube channel, The Quest Maths for All by Toor sir. This is Dr. RPS Toor और इस लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ we are going to start with a new chapter of class 12th continuity and differentiability. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ differentiability ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਲਰਨਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ differentiability ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜੋਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਐਂਡ ਲੋਗਰਿਥਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ, chapter number 5th, continuity and differentiability, class 12th, and our first topic is continuity. ठीक है, continuity ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, continuity ਦੀ definition ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ examples ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ topic ਨੂੰ apply ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So continuity ਦੀ definition ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, a function fx is continuous at a random point, at any point, you can say c point, a ਤੁਸੀਂ a ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, c ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ और इन्हों की कोई डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे थोड़े को 1 0 -1 कुछ भी, ठीक है। तो जनरल पॉइंट आप ले रहे हैं कि उस पॉइंट के उपर फंक्शन कंटीन्यूअस है इफ द फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू c। डिफाइंड होने का मतलब की है कि जो आप जो भी जिस पॉइंट के उपर आप कंटीन्यूटी चैक कर रहे हैं, अगर उस पॉइंट को डायरैक्टली आप फंक्शन के विच भरते हाँ तो जो वैल्यू आती है वो प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए है, मतलब कोई नॉट डिफाइंड वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए वो, राइट। तो इस पॉइंट के उपर फंक्शन डिफाइन करता हो एंड जदों आप यदि लिमिट कढ़ीए उस पॉइंट के उपर, लिमिट तुसीं सीख चुके हो +1 दे विच, लिमिट का टॉपिक जिहड़ा हैगा वो तुसीं +1 दे विच सीख चुके हो। तो एक तो फंक्शनल वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए है और उस पॉइंट के उपर आप फंक्शन की अगर लिमिट कढ़ीए तो लिमिटिंग वैल्यू जी हैगी है वो फंक्शनल वैल्यू दे अगर बराबर आ जाए दैन दैट फंक्शन इज सेट टू बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तो तुसीं एक बार एवं समझो, जदों ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਆਏਗੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ then that function is said to be discontinuous function and that point is called the point of discontinuity। और अगर कंटिन्यूअस है तो इस पॉइंट को फिर आप कंटिन्यूटी पॉइंट कह दें, राइट। ये दो डेफिनेशन अपने को आ रही ने, ये जी हैगी है जनरल लिमिट आप कढ़ रहे हैं। देखो एक गल तो तुसीं पहले लिमिट का मैं थोड़ा इहदा दोबारा दसा +1 दे विच कि लिमिटिंग वैल्यू कढ़न का मतलब की होंदा है। सुपोज अगर कोई फंक्शन वैल्यू है अपने को f(x) इज एनी फंक्शन एंड एट x इक्वल टू 1 f(x) इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब आप कोई यदि वैल्यू कढ़ांगे तो कोई ना कोई आंसर यदा आएगा ही आएगा, राइट। मान लो k आ गया, k इज एनी कॉन्स्टेंट एट द x इक्वल टू 1 ते आप फंक्शन वैल्यू कढ़ रहे हैं, तो मान लो कि फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, डिफाइन कर रही है। हुण आप इहदी लिमिट कढ़दे हैं, लिमिट कढ़न का मतलब की है और फंक्शन वैल्यू कढ़न का डिफरेंस की है, की मतलब होंदा है। अगर तो फंक्शन वैल्यू कढ़ रहे हैं तो मतलब है कि x की एक नंबर ते एक जो वैल्यू दी हुई है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਅਪਰੋਚਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ LT ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ LIM, ਲਿਮਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 1, x ਅਪਰੋਚਿਸ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, 1 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ठीक है, -0.01, ठीक है, 0.1 -0.01 -0.001। तो ये आ वाली सारी वैल्यूज ले सकता है कौन, x, when x is approaching to 1।
और वो इस पासे भी अप्रोच कर रहे हैं एवें, ठीक है। तो इधरली वैल्यूज़ किहड़ियां ने, इधरली वैल्यूज़ भी 0.1 0.001 0.0001, मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ x ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਨੋਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ 1। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲਦੇ ਆ, x ਇਜ਼ ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਟੂ 1, ठीक है। x एक ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਨੋਟ ਐਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 1, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 1 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਿਮਿਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਐਸ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੈਫਟ हैंड लिमिट इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट, हुण इहनूं आपां लिमिटिंग दे विच किवें डिनोट किवें कर सकते हैं। लिमिट लैफ्ट हैंड लिमिट विल बी एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस। सी माइनस का मतलब है कि सी तो घट वाले पॉइंट, लैफ्ट हैंड वाले पॉइंट्स, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शनल वैल्यू का मतलब है एफ सी, एंड राइट हैंड लिमिट का मतलब है एल आई एम या एल टी पा लो, मेरा जो आदत है वो एल टी की पई हुई है, तो एल आई एम एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस। सी प्लस का मतलब राइट हैंड साइड वाले जो पॉइंट्स हैं सी तो राइट हैंड साइड वाले, ठीक है, उन्होंने दे उपर आप फंक्शनल की वैल्यू कढ़नी है। तो अगर ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर आ जांदियां ने देन वी से दैट एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। बोलो ये गल समझ आ गई होनी है। तो ये मैं तुहानू डेफिनेशन समझाई है, और अगर बराबर नहीं आती दैन वी से दैट द डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है वो। ठीक, हुण इहदियां कुछ एग्जाम्पल्स आपां करदे हां जदों ये आपां टॉपिक कर रहे हैं ना, ये जो डेफिनेशन आपां कर रहे हैं ये तुसीं ध्यान देवो कि आपां सिर्फ एक पॉइंट के उपर गल कर रहे हैं। ये सारी डेफिनेशन के उपर वी आर कैलकुलेटिंग द लिमिटिंग वैल्यू एंड द फंक्शन वैल्यू एट ओनली वन पॉइंट। ठीक, एक कुछ एग्जाम्पल्स आप करते हैं इन्हां दियां, तुहानूं गल समझ आएगा। फिर आप पूरे एक इंटरवल के उपर इहदियां लिमिटिंग वैल्यू कड्डांगे और फंक्शनल वैल्यू कड्डांगे। तो उत्थे फिर आप पूरे एक इंटरवल दे विच, चाहे वो क्लोज इंटरवल है चाहे ओपन इंटरवल है, उहदे फिर उस इंटरवल दे विच फिर आप चैक करांगे कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है। ठीक, सो लेट्स बिगिन विद सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। अपनी किताबां तुसीं खोल लो, दिस इज योर 5th चैप्टर, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 दे विच जो कह रहा है चैक द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय द फंक्शन इज 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1। तो एक पॉइंट के उपर उन्हें चैक करने को तुहानूं कह दिता। ठीक, तो सब तो पहला की करना है, फंक्शनल वैल्यू कढ़ लो। तो f1 कढ़ लो, है ना। f1 का मतलब है सीधी बस वैल्यू पुट करो ये उपर 2 1 प्लस जिथे जिथे x है वो वैल्यू भर दो 1, है ना। तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगी। हुण लिमिटिंग वैल्यू कढ़ो ये एल आई एम एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स, यानी कि वो सारे पॉइंट्स जो 1 दे नेबरहुड विच ने, 1 दे नेबरहुड विच एग्जैक्टली 1 नहीं आता, हो गया 1 पॉइंट, है ना। ऐसे जो आसपास दे जो सारे पॉइंट्स ने आ वाले सारे नेबरहुड के उपर वो मतलब होंदा है उन्हां पॉइंट्स के उपर लिमिट कड्ढन लिमिट आपां कड्ढनी है कि उत्थे फंक्शनल वैल्यू कितनी होएगी आस पास दे पॉइंटां दे उपर। ठीक है, जो पॉइंट वो चैक करने को कह रहा है तो उहदे च कितनी होएगी, फिर इत्थे वैल्यू पुट करो तुसीं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। देखो वैल्यू तो आपां वही भरनी है लेकिन लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द लिमिटिंग वैल्यू। सो 2 × 1 + 3 दिस इज आल्सो 5। सो की लिखांगे लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स f1। ठीक, इंप्लाइज एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। सो दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल कि फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू जी हैगी आ वो सेम आ गई है, इस करके जो फंक्शन आपां नूं दिता है वो कंटीन्यूअस है। एग्जाम्पल सैकेंड देखो, ये तुहानूं कह रहा है
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। और ये चैक करन नूं कह रहा है एट एक्स इक्वल टू 0, तो चैक करो फिर। तो सब तो पहला तो तुसीं इहदी फंक्शनल वैल्यू कढ लो, f0 0 है, फिर लिमिटिंग वैल्यू कढ लो lim x approaches to 0 x square, this is also 0, so the limiting value is equal to the function value, so function is continuous। एग्जाम्पल थर्ड देखो, थर्ड एग्जाम्पल ਦੇ ਵਿੱਚ कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f given by, here you have given by the function is given to be modulus function, ठीक है। और पॉइंट की दिता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ at x equal to 0। तो सब तो पहला ਤੁਸੀਂ ना मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन लिख लो। याद है जो आप +1 भी किते ने फंक्शंस एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस, +2 दे विच भी किते ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन किते सीगे, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, सिग्नम फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो इस तरह के फंक्शंस आप काफ़ी किते ने, राइट। तो इसकी डेफिनेशन की बनती है -x व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, 0 तो कट रहे हैं ना, और +x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो आदि डेफिनेशन बनती है, ठीक। हुण x लैस देन 0 का मतलब की है, अगर इनू नंबर लाइन के उपर आप समझिए तो आ तो हो गया 0 जिथे आप फंक्शनल वैल्यू कड्डांगे, राइट। और लैस देन 0 का मतलब है 0 तो घट वाले पॉइंट, और 0 भी इंक्लूडिड है, आ वाले सारे 0 भी विच इंक्लूडिड है, राइट। और ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 तो अगे वाले पॉइंट सारे, ठीक है, 0 विच इंक्लूडिड उदों नहीं है क्योंकि 0 तो वड्डा है, तो उत्थे फंक्शन की वैल्यू कितनी है x। हुण तुसीं चैक करो, देखो हुण इस डेफिनेशन के हिसाब नाल नहीं, क्योंकि टोटल फंक्शनल वैल्यू है इत्थे, तां हुण लैफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लैणियां पैणगीਆਂ, तो फिर तुहानूं आ डेफिनेशन यूज़ करनी पवेगी। सब तो पहला फिर तुसीं इहदी फंक्शनल वैल्यू कढ लवो f0, ठीक है, एट 0। देखो आ x इज लेस देन और इक्वल टू 0 है ना, x इज लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो उत्थे फंक्शन की वैल्यू कितनी है -x। देखो डेफिनेशन दे विच तुसीं अगर डेफिनेशन देखो ना, तो लैस देन दे नाल इक्वल साइन नहीं है, तो लैस देन तो उवें ही है, ग्रेटर दे नाल 0 इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब की बनेगा इधरों तो 0 नहीं है, इत्थे 0 जो है वो राइट साइड पर है, तो तुसीं डेफिनेशन ध्यान नाल करनी है, ठीक है। इत्थे आपां थोड़ा मिस किया है, तुसीं ध्यान करना है इनू। तो लैस देन 0 वास्ते तो -x है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वास्ते +x है। वैसे कोई फर्क नहीं पैन लग्या, पॉइंट तो वही बनेगा अपना, फंक्शन वैल्यू भी वही बनेगी, राइट। तो हुण इक्वल टू 0 के उपर वैल्यू कढ रहे हैं, इक्वल टू 0 के उपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है x, तो इत्थे फिर किहदे च वैल्यू भरांगे आपां, फंक्शन की वैल्यू x ले रहे हैं ना, तो 0 ही भर दो, फंक्शन की वैल्यू x है, x की जगह 0 भरिया तो 0 आ गया, इनू आप कट के रख लिया। हुण लिमिट कट लैने लैफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज lim x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx। हुण 0 माइनस का मतलब है लैस देन 0 वाले पॉइंट्स, 0 तो घट वाले पॉइंट्स, उत्थे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू है -x। हुण इत्थे 0 भरो तो कितना आ गया, 0 ही आ गया। हुण राइट हैंड लिमिट कढ लो, राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx, lim x अप्रोचेस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब है राइट हैंड वाले पॉइंट्स, ठीक। तो इत्थे फंक्शन की वैल्यू कितनी है फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, दैट इज x। हुण पुट करो x अप्रोचेस टू 0, 0 भरांगे तो 0 आ जाएगा। तुसीं की देखिया हुण कि एग्जाम्पल थर्ड दे विच लैफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 जो उन्हें पॉइंट दिता सीगा चैक करने लई, तीनों चीज़ां, तीनों लिमिट्स और दो लिमिट्स और फंक्शनल वैल्यू जो है वो इक्वल आ गई आपस में। दैट मीन्स दिस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। नाउ लेट्स डू दिस एग्जाम्पल नंबर 4th। हुण तुहानूं फंक्शन की दो उन्हें पर्टिकुलर वैल्यूज़ देतियां ने, ये फंक्शन की वैल्यू उदों है जदों x 0 नहीं है। x 0 नहीं है मीनस वट, x 0 नहीं है मीनस x दे नेबरहुड वाले पॉइंट्स लेने हैं, जिथे x 0 के बराबर नहीं है। उसका मतलब की होएगा कि 0 वाला पॉइंट तुसी नहीं लेना, लेकिन वो आसे पासे जो नेबरहुड वाले पॉइंट्स ने और जो राइट और लैफ्ट दोनों पासे ने वो वाले लेने हैं। ये तो मैं थानू
पंजाबी विच देसी लैंग्वेज समझाता कि नेबरहुड वाले लैने हैं, लेकिन अगर मैथमेटिकल गल करिए तो उसका की मतलब बनता है कि तुसी लैफ्ट हैंड लिमिट लैनी है और राइट हैंड लिमिट लैनी है कदों, जदों x 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और वैसे तुसी एक कली भी लिमिट लै सकते हो जदों x 0 के बराबर नहीं होएगा, वैसे दोनों भी लै सकते हो। ठीक, और जदों x 0 है उदों 0 है मीनस फंक्शनल वैल्यू, तो वह थोड़ा उन्हें दे ही रखी है द फंक्शनल वैल्यू एट 0 इज़ 1, तो यह आप कढ़ के रख ली। चलो हुण आप चलते हैं लैफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जिमें कि आप हुणे जिमें कि तुसी एग्जाम्पल नंबर 3 विच भी करके गए हो। ठीक है, तो इत्थे लैफ्ट हैंड लिमिट कढ़ लो फिर, x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx, फंक्शन वैल्यू किहड़ी लवांगे सेम, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x क्यूब प्लस 3, तो x की जगह पे 0 पुट करांगे, वैल्यू आ जाएगी 3। राइट, राइट हैंड लिमिट कर लो, राइट हैंड लिमिट ते x अप्रोचेस टू 0 प्लस वैल्यू वही लेनी है, x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 नहीं है मीनस लिमिटिंग वैल्यू कढ़नी है। तुसी इत्थे भी 3 आ गई, आ दोनों मिला के की बनता है, फिर दोनों मिला के ये बनता है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 0 fx इज 3 and this is not equal to the functional value at f is equal f0। ठीक है, जो x 0 लेने उदों जो फंक्शनल वैल्यू आती है दैट इज 1 और वो 3 उहदे बराबर नहीं है। दिस मीन्स द गिवन फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये सी तुहाडी एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा, जे तुहानू वो पूछे कि चलो कंटिन्यूअस तो नहीं है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है, आप जिवें उन्हें डेफिनेशन में देखा सीगा, तो फिर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है क्या, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट किहड़ा है यार, जिदे पर चेक कर रहे हैं, बस सीधी जी गल है। सो x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, समझ आ गया होना है। ठीक है, हुण चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 दी और। एग्जाम्पल 5 विच कह रहे हैं चेक द पॉइंट्स वेयर द कॉन्स्टेंट फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। थानू एक कॉन्स्टेंट फंक्शन का मतलब की है कि तुसी डोमेन दी कोई भी वैल्यू भरी चलो, वैल्यू इक्को ही आएगी, के आएगी, के ही आनी है। ठीक है, इज कंटिन्यूअस, क्या ये कंटिन्यूअस है, आप चेक करके दिखाना है उन्होंने। राइट, तो तुसी कोई एक पॉइंट जिमें आप डेफिनेशन में चूज किया है, लिमिटिंग वैल्यू ले लो x अप्रोचेस टू c fx। ठीक है, इतने वैल्यू की भरांगे, कॉन्स्टेंट ही रहेगी, वैल्यू तो के ही रहनी है। हुण c दे उपर वैल्यू कड्डो ओदी, यानी कि x की जगह c भर दो, तां भी वैल्यू चेंज नहीं होएगी, वही रहेगी। दिस मीन्स दैट फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। ठीक है, एग्जाम्पल 6 देखो, ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स ने, यह तुसी ना डायरैक्ट वैसे भी याद रख सकते हो। ये भी एक तरह का मल्टीपल चॉइस आप कह सकते हैं कि एक एक नंबर के क्वेश्चन ने जिन्होंने तुसी देख के भी दस सकते हो। देख के किमें, देखो जो x 0 नहीं है तो आप लिमिटिंग वैल्यू कटांगे तो 0 इतने भरांगे तो कितनी आ जाएगी 3, और जो 0 है तो कितनी है 1 है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं ना होए, तो फिर इन्ना लंबा सोल्यूशन करने की लोड़ नहीं है, एक नंबर के क्वेश्चन में डायरैक्ट आंसर दे सकते हो भाई ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये भी देखो कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो x की वैल्यू जो मर्जी भरते रहो, जो मर्जी का मतलब है इतने ताही एक जनरल पॉइंट लै लिया, इतने एक जनरल लिमिट लै ली कि जो मर्जी भरो तो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू ही आनी है। सो एफ सी इज के, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल 6 में की कहता है कि ये तुहाडे कोल आइडेंटिटी फंक्शन उन्हें दे रखा है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब की होंदा है कि जो तुसी फंक्शन दे विच x की वैल्यू भरोगे वही वैल्यू आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो इत्थे भी कंटिन्यूटी चेक कर लो फिर। ठीक है, x अप्रोचेस टू c fx, c की वैल्यू भरांगे तो कितनी आएगी, c ही आएगी, क्योंकि x की जगह पे की भरना है, c भरना है। ठीक है, मैं इत्थे LT यूज कर रहा, तुसी LIMV यूज कर सकते हो, लिमिट है ना, वो कोई गल नहीं। और फिर इत्थे जो आप फंक्शनल वैल्यू कढ़ रहे हैं तो c के उपर फंक्शनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी c आ जाएगी, दोनों बराबर आ गए ना। देयरफॉर फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, आ भी कंटिन्यूअस है।
ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਐਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਵਾਤੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਬਣਦੇ ਨੇ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਐਟਲੀਸਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਟ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦਾ ਡੋਮੇਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਐਟ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ? ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਡੋਮੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਰਾ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਚੈੱਕ ਵੈਦਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਔਰ ਨਾਟ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ, is the function defined by fx is equal to x modulus is continuous। जस्ट देखो आही क्वेश्चन एग्जाम्पल 7th विच है मॉडुलस फंक्शन, और आही क्वेश्चन एग्जाम्पल 3rd विच भी है, ये भी मॉडुलस फंक्शन है। 3rd एग्जाम्पल और 7th एग्जाम्पल दे विच तुसी डिफरेंस देखो की है। उत्थे वो कह रहा है कि मॉडुलस फंक्शन नू तुसी चेक करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू 0, लेकिन 7th एग्जाम्पल दे विच कोई पर्टिकुलर पॉइंट का नाम नहीं ले रहा, वो कह रहा है कि फंक्शन नू चेक करोगे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। दैट मीनस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जदों आपां नू कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं कह रहा, ऐसा मतलब यू हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दैट फंक्शन एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन, ठीक है। हुण तुहानूं मैं इहदी समझाना भी करना किवें है। डोमेन तुहानूं वैसे दित्ती होएगी किसी भी फंक्शन दी, है ना। मान लैंदे आ कि लेट अ फंक्शन fx बी डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। ये डिफाइंड है, यानी कि x जो है ये वैल्यू लै रहा है। हुण क्लोज का मतलब है कि a और b भी इंक्लूडिड ने, यानी कि a भी लेना है b भी लेना है, राइट। तो ये जो एक फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइंड है तो कंटिन्यूअस होने का मतलब है फॉर fx टू बी कंटिन्यूअस ऑन ए बी, ठीक है। ए फंक्शन ए बी दे विच कंटिन्यूअस होएगा, दैट इज फॉर एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ ए बी इंक्लूडेड ए बी एंड इन बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि क्लोज इंटरवल है ना, तो वह मतलब की बनेगा, वह मतलब है कि तुसी आ चीज़ कटनी है। सो हर एक पॉइंट के उपर चेक करने का मतलब की है कि यदि जो लिमिट तुसी कट रहे हो ए पॉइंट के उपर, लिमिट x अप्रोचेज टू a प्लस fx, दिस शुड बी इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू एट a, एंड सेकेंड लिमिट x अप्रोचेज टू b माइनस fx, दिस शुड बी इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू fb। तो अगर एवें हो जाता है देन वी से दैट द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल, दैट इज द एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन। हुण एक गल ध्यान नाल समझो कि मैं इत्थे a प्लस क्यों पाया और b माइनस क्यों पाया, है ना। तुसीं कहो सर a माइनस क्यों नहीं पाया और b प्लस क्यों नहीं पाया। a माइनस का मतलब होएगा कि a तो पिछे वाले पॉइंट और b प्लस का मतलब होएगा b तो अगे वाले पॉइंट्स, बट उसका कोई मतलब ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये इंटरवल कितों शुरू होता है? ए तो शुरू होता है, मतलब ए तो अगे मीनस ए प्लस, और बी तो पिछे इंक्लूडिड बी, तो बी तो पिछे का मतलब है बी माइनस। और अगर आप लिख दिए कि ए जिवें ना आ देखो ना, आ है ना इंटरवल अपने को, ए और बी भी इंक्लूडिड है और इन बिटवीन भी है, तो आप ए तो जाना है राइट और बी तो जाना है लैफ्ट। ऐसा मतलब ए प्लस पॉइंट और बी माइनस पॉइंट्स। बोलो समझ आ रहा है ना? ए तो अगे वाले और बी तो पीछे वाले, इंक्लूडिड बी ए एंड बी आल्सो, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्लोज इंटरवल। तो ऐस करके ए प्लस पॉइंट लेने हैं और बी माइनस पॉइंट्स लेने हैं, यानी कि ए दे ऊपर प्लस लिमिट लेनी है, बी दे ऊपर माइनस लिमिट लेनी है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एवरी पॉइंट ऑफ द गिवन डोमेन। तो हम जिवें एग्जाम्पल नंबर 7 है, सी द डिफरेंस इन दिस इज गिवन दैट एग्जाम्पल नंबर 7 फंक्शन तुहानूं दिता है उन्हें, वो कह रहा है इन्हू चेक करो कि वैदर इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन और नॉट, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। तो तुसीं सब तो पहला फंक्शन की फिर डेफिनेशन लगा लो, जो आप पहले भी लगाई है एग्जाम्पल नंबर 3 दे विच, माइनस एक्स सच दैट एक्स इज़ लैस दैन 0 एंड प्लस एक्स वैन एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। बोलो समझ आया? हुण आपां इहदियां जिहड़ियां ने लिमिट्स कढदे आ एक इंटरवल नूं लैंदे होए और हर एक पॉइंट के उपर आपां इहदी लिमिट कढांगे। सो सब तो पहला तुसीं इहदी जो लिमिट आपां कढदे आ, मान के चलते हैं कि आप एक पॉइंट ले रहे हैं सी लैस दैन 0, यानी कि ऑल नैगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है, उहदे उपर आप चेक कर रहे हैं। तो पहले फंक्शनल वैल्यू देखो, नैगेटिव वैल्यू के लिए की वैल्यू आती है यदि माइनस सी आ जाएगी, क्योंकि आप आ फंक्शनल वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो लिमिट लो फिर x अप्रोचेज टू c माइनस एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेज टू c माइनस फंक्शनल वैल्यू की है माइनस एक्स। हुण फिर दोबारा तुसीं इहदे विच c भरोगे तो कितना आ गया माइनस c। सो लिमिट x अप्रोचेज टू c माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी implies एफ एक्स इज continuous at all या for all negative real numbers, ठीक है। नेगेटिव रियल नंबर आप कंटिन्यूटी प्रूव करती, आ वाला पार्ट प्रूव करता, ठीक। हुण पॉजिटिव ले लो फिर, लेट c इज ग्रेटर दैन 0, यानी कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। c किनू डिनोट कर रहा है? वो सारे नंबर्स जो 0 तो वड्डे ने, ठीक है। सब तो पहला फंक्शनल वैल्यू कढ़ते हैं यदि एफ सी ग्रेटर दैन 0 के लिए फंक्शनल वैल्यू कितनी है एक्स, ये सी भरांगे एक्स की जगह तो कितना आ जाएगा सी, राइट। लिमिट कट लो फिर एक्स अप्रोचेज टू सी प्लस का मतलब है पॉजिटिव साइड वाले सारे रियल नंबर्स। सी डिनोट्स द, अगर सी प्लस है तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स ने, और अगर सी नेगेटिव है तो सारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। उन्होंने डिनोट कर रहा है, कहने का मतलब है। तो इतने फंक्शनल वैल्यू हुण की आ रही है एक्स अप्रोचेज टू सी प्लस, फंक्शनल वैल्यू इज एक्स, वैल्यू पुट करांगे तो सी आ गया। देखो आ दोनों भी बराबर हो गए, तो इन्हें आप हुण इत्थे की लिखांगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी प्लस एफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ सी implies एफ एक्स इज continuous for all positive real numbers also। तो ਇਹਦਾ मतलब है नेगेटिव रियल नंबर लिए भी continuous है, पॉजिटिव लिए भी है। ਇਹਦਾ मतलब दिस फंक्शन इज continuous function for all values in the domain of the function। domain of the function ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, क्योंकि रियल फंक्शन है तो सैट ऑफ रियल्स ही है, रियल नंबर का सैट ही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही ये फंक्शन continuous है। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 8। देखो कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, इन्ना ही किया ना उन्हें, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं ना दिता, तो फिर जनरल पॉइंट के उपर यानी कि जनरल कोई भी पॉइंट ले लो, क्लोज इंटरवल बारे भी नहीं कह रहा था, फिर आप जनरल पॉइंट मान के चलते हैं सी, ठीक है, क्योंकि आप रियल फंक्शंस कर रहे हैं, इस करके इट इज़ अंडरस्टूड दैट कि रियल फंक्शंस की डोमेन और रेंज जो होती है वो रियल ही होती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रियल फंक्शन, ठीक है। तो आप रियल फंक्शंस ही कर रहे हैं हुण, ठीक। तो इत्थे तुसीं एक पॉइंट मान लो, फिर लैट एक्स इज इक्वल टू सी के उपर आप चैक कर रहे हैं, तो सब तो पहले तुसीं फंक्शनल वैल्यू चैक करो ये सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। हुण लिमिट चैक कर लो,
ठीक है, LIM x अप्रोचेस टू C, नैगेटिव पॉजिटिव हुण लैण की लोड़ नहीं है क्योंकि फंक्शन की इक्को ही वैल्यू दी हुई है, एक ही वैल्यू है ना, लैस दैन 0 तो या ग्रेटर दैन 0 के उपर दो फंक्शनल वैल्यू नहीं दी हुई ना अपन, जिसे पिछला क्वेश्चन किया सीगा, ठीक है। तो इत्थे अप्रोच करांगे C नूं तां आ जाएगी वैल्यू C क्यूब C स्क्वायर माइनस x, देखो दोनों वैल्यूज बराबर है ना, दीज आर टू इक्वल, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है, ऑल पॉइंट्स इन द डोमेन x इज इक्वल टू C। बोलो समझ आया। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल 9 दे विच तुहानू फंक्शनल वैल्यू उन्हें दी है 1/x, ठीक है, एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, तो वही तुसी C दे ऊपर चेक करके देख लो, फंक्शनल वैल्यू आएगी 1/C, और जदों ये लिमिट अप्रोच करेगी fx तो अपने को आ जाएगा लिमिट, ठीक है, इत्थे भी तुसी LIM ही ले लो, ठीक है, x अप्रोचेस टू C 1/x, दिस इज इक्वल टू 1/C, दोनों बराबर ने ना, तो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, राइट। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर रहा, बाकी तो जो आप वर्डिंग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं वही वर्डिंग्स है सारियां, और करने का तरीका भी सेम है, ठीक। हुण आ जाओ अपने कोल जिहड़ा हैगा फंक्शनल वैल्यू 2-2 3-3 फंक्शनल वैल्यूज़ होणगियां, जिवें तुहानूं मैं हुणे एक्सरसाइज विच भी दिखाया सीगा 10 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन सीगे, वो हुण एग्जाम्पल 10 तो लैके जिन्ने भी अगे क्वेश्चन 15 तक बनते हैं, ये सारे हुण अपने कोल सारे पॉइंट्स के उपर चैक करने को कहेगा, लेकिन इंटरवल के उपर पॉइंट्स दिते हुए हैं कि एस वैल्यू तो लैके एस वैल्यू तक फंक्शन की वैल्यू आ है, फिर एस वैल्यू तो लैके एस वैल्यू तक फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है, तो वो उपर आपां नूं कंटिन्यूटी चैक करनी है।